Okay, so just I'm searching for JavaScript. Okay, on my web browser. Okay, fine, and we'll get lot of links. I'm just open MDN website, and second website which I'm going to use W3 School. Okay, so with the help of MDN website, guys, you can go through the JavaScript tutorial. You can learn, you can read each and everything, and after that you can learn what is JavaScript, how it's work and all. Okay. Apart from this MDN website, we have a W3 School website which is very popular. Okay. If you wanted to learn JavaScript, if you wanted to learn HTML, CSS, or any other tools, definitely you need to go on that particular website, and here like each and everything is available. Okay. So let me start. What is JavaScript? So when you're talking about JavaScript, guys, JavaScript is one of the popular programming language in the world. Okay. When I talking about web development, when I talking about web designing, when I talking about scripting language, so JavaScript is very popular. Okay. JavaScript is easy to learn. If you're able to see the JavaScript, if you know C language or C++ language and Java language, okay, so it is very easy to understand and learn JavaScript language. Okay. One more thing, there are multiple of students which is asking to me, ki, sir, what is Java and what is JavaScript? So when I talking about So when I talking about JavaScript, guys, JavaScript generally we are using for web development. Okay, it is an object-oriented programming language, but it is a client-side programming language as well. When I talking about Java language, so Java is very different programming language. Okay, so when I talking about Java, so Java like with the help of Java, we'll creating mobile application, we'll creating like backend application. So Java is very different language as compared to JavaScript. Okay. Mm, okay. So why JavaScript? Why study JavaScript? JavaScript one of the three languages all web developers must learn. First one, when I talking about HTML, so with the help of HTML, we can create a structure of any particular web page. Similarly, if you understand, if you learn HTML, so it is must be you need to understand CSS as well, because we need to apply CSS to any particular website to create layout, create a to put different designs and all. Similarly, when I talking about JavaScript, so it will actually like change the entire behavior of web page. है ना? So web page behavior it will change. Okay, or you can say it will add a brain of that particular web page, and based on the user interaction that will showcase each and everything. Okay, so let's go to the JavaScript introduction. Here you are able to see JavaScript, the programming language of the web. It can calculate, manipulate and validate data. It can update and change both HTML and CSS. So with the help of HTML and CSS, guys, we can change HTML as well as CSS as well. है ना? कैसे करेंगे? We'll see. है ना? So JavaScript के किसी भी कंटेंट को चेंज करना है, so with the help of get element by ID we can change each and everything, है ना? ठीक है. So let's try to use this, है ना? So here you are able to see one of the many JavaScript HTML method is get element by ID, है ना? अभी मैं try it by yourself क्लिक करता हूँ. So you are able to see this code. Okay, okay. This is the normal HTML code if you are able to see. Okay. Inside this normal HTML code, there is HTML body, HTML tag, then body tag. Inside it, H2 tag is there. Okay.
एंड पैराग्राफ टैग इज देयर. पैराग्राफ टैग, इनसाइड पैराग्राफ टैग हमने एक आईडी, लाइक एक आईडी है जिसका नाम है डेमो, है ना. एंड उसके अंदर यू आर एबल टू सी इस बॉडी टैग के अंदर एक बटन टैग है जिसका टाइप है बटन. एंड ऑन क्लिक पे हम कुछ यूज कर रहे हैं. व्हाट वी आर यूजिंग हियर, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी. तो गेट एलिमेंट बाई आईडी एक मेथड है और एक से फंक्शन है ना. इफ़ यू आर एबल टू लर्न जावा लैंग्वेज, जावा किसी को पता है तो वहाँ पे मेथड बोलते हैं. व्हेन आई टॉकिंग अबाउट सी लैंग्वेज तो वहाँ पे हम लोग, और पाइथन लैंग्वेज मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन, है ना. तो डॉक्यूमेंट बाई डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एक मेथड है. इसमें हम पास कर रहे हैं डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, है ना, एंड हेलो जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं, है ना. देखो ये प्रॉपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना. मैं जैसे यहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ, देखना क्या होगा. हेलो जावा स्क्रिप्ट हो गया, है ना. यानी पहले हमारा क्या था कि HTML का जो कोड था वो जनरेट कर रहा था जावा स्क्रिप्ट कैन बी चेंज HTML कंटेंट, है ना. यानी ये वाला पैराग्राफ टैग दिख रहा था हमें. फाइन. जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, ये हमारा पूरा पैराग्राफ दिख रहा था. जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, क्लिक मी पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो गया, हेलो जावा स्क्रिप्ट, है ना. क्या हो गया, हेलो जावा स्क्रिप्ट. वाई, बिकॉज हमने उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया है एंड वहाँ पे यूज कर रहे हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी. और जो डेमो है, डेमो को हमने सेलेक्ट कर लिया. डेमो को सेलेक्ट करने के बाद उसके इनर HTML के अंदर हमने असाइन कर दिया हेलो जावा स्क्रिप्ट, है ना. सो दिस इज द मेथड विच वी आर यूजिंग, है ना, गेट एलिमेंट बाई आईडी. अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जावा स्क्रिप्ट ऐसे बोथ डबल एंड सिंगल कोटेड, है ना. अगर मान जाओ तुम्हें स्ट्रिंग बनाना है ना. इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट अ स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज, आइदर C++ लैंग्वेज, है ना, और पाइथन लैंग्वेज, तो वहाँ पे क्या करते हो, सी लैंग्वेज में क्या करते हो, तुम्हें स्ट्रिंग बनाना है तो फॉर एग्जांपल नेम नाम का एक वेरिएबल बनाते हो ना, नेम, एंड यू आर असाइनिंग ओवर योर फॉर एग्जांपल सोहम, ठीक है. इस तरीके से लिखते हो, लेकिन सॉरी C++ लैंग्वेज में. लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं बहुत ईजीली, सोहम. दैट इज़ परफेक्टली फाइन, है ना. तो आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखो या फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखो, इट्स नॉट मैटर, है ना. यू कैन यूज एनी पर्टिकुलर थिंग, है ना. देखो जावा स्क्रिप्ट की मदद से गेट एलिमेंट बाई आईडी को सेलेक्ट करके डेमो को उसमें इनर HTML में हेलो जावा स्क्रिप्ट लिखा है. इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांटेड टू चेंज अ फॉन्ट स्टाइल ऑफ एनी पर्टिकुलर लाइक वेब पेज में किसी भी चीज़ का फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो, यानी CSS को चेंज करना चाहते हो, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी को ही सेलेक्ट करोगे, है ना. उसमें जो डेमो था उसके आईडी को सेलेक्ट करोगे और वहाँ पे फॉन्ट साइज भी हम चेंजेस कर सकते हैं बहुत ईजिली. अगर मैं इस पर ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना, व्हाट कैन बी जावास्क्रिप्ट डू, और यहाँ पे डेमो में ये सारी चीज़ें लिखी हैं और बटन में यहाँ पे लिखा है क्लिक मी, और यहाँ पे चेंज किया गया फॉन्ट साइज 35 पिक्सल. तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसका फॉन्ट चेंज होकर 35 पिक्सल हो जाएगा, है ना. देखो इस तरीके से, ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम फ्रंट एंड में HTML को भी चेंज कर सकते हैं, CSS को भी चेंज कर सकते हैं. इवन दो वी कैन एड लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, टू आवर वेब पेज, है ना. अब देखो ध्यान से, कुछ चीज़ें हमें रिमेंबर करनी चाहिए. जावा स्क्रिप्ट एंड जावा आर टू कंप्लीट डिफरेंट लैंग्वेजेस, बोथ इन कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन. ओके. बहुत लोग कहते हैं कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है. दोनों लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है. दोनों लैंग्वेज को अलग अलग कंपनी ने बनाया है ना. व्हेन आई टॉकिंग अबाउट जावा लैंग्वेज, तो जावा लैंग्वेज को बनाया सन माइक्रो सिस्टम ने, है ना, नियर अबाउट 1993, है ना. एंड व्हेन आई टॉकिंग अबाउट जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया ब्रेडन ईच ने, है ना. ब्रेडन ईक आइदर ब्रेडन ईच इन 1995 एंड बिकेम द इकमा स्टैंडर्ड 1997, है ना. So ICMA 262 is official name the standard ICMA script. It is the official name of the language. तो जब से 2016 वर्जन आया, मतलब जावास्क्रिप्ट का 16 वर्जन आया, उससे तब से हमारा स्टार्ट हो गया ICMA स्क्रिप्ट वर्जन. अभी हम जावास्क्रिप्ट को ICMA स्क्रिप्ट बोल रहे होते हैं या फिर ICMA स्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं. उसमें बहुत सारी चेंजेस थी,
है ना, ठीक है। तो दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, so both are very different language, both are the object oriented programming language, but when I talking about javascript mostly with the help of javascript we are handling the client side environment, है ना, यानी वेबसाइट बना रहे होते हैं, वेबसाइट में स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं। बट व्हेन आई टॉकिंग अबाउट जावा लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज यू कैन क्रिएट अ बैकएंड एप्लीकेशन, we can create a mobile application, we can create a desktop application with the help of java language. Okay. Like there is two options. Java is sort of JavaScript. No, wrong है, false. ठीक है। So where टू पे आ जाते हैं। गेट एलिमेंट, इनर एलिमेंट, ठीक है, जावा सिंटेक्स। चलो यार, अच्छा अभी लाइक माइट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस गेट एलिमेंट बाई आई डी एंड ऑल। तो हम इसे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू डील विथ द, है ना, फंक्शन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे गेट एलिमेंट बाई आई डी का हम यूज कैसे करते हैं। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू just going here in Java JS syntax, JavaScript syntax part, and we'll see like how we can declare any particular variable and all. Okay, तो ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, है ना। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप index.html यूज कर रहे हो और आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो देयर इज द फर्स्ट वे विच वी कैन यूज स्क्रिप्ट टैग, है ना, वी कैन यूज स्क्रिप्ट टैग एंड इनसाइड इट हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। दूसरा वे क्या है कि हम स्क्रिप्ट ऐसे टैग लिखें और इसके अंदर हम अपना जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है ना, उसको इसके अंदर एम्बेड कर लें लाइक दैट। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जावास्क्रिप्ट जैसे हम लोग सी लैंग्वेज के फाइल को सेव करते हैं .c के एक्सटेंशन के साथ में, C++ के फाइल को सेव करते हैं .cpp के एक्सटेंशन के साथ में, पाइथन के लिए .py। इसी तरीके से व्हेन आई टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट, सो वी आर यूजिंग .js, JS का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट। इसी तरीके से व्हेन आई टॉकिंग अबाउट जावा लैंग्वेज, तो जावा लैंग्वेज का जो एक्सटेंशन होता है .java हम लोग लिख रहे होते हैं ऐसे, हेलो .java, इस तरीके से हम एक्सटेंशन लिख रहे होते हैं जावा लैंग्वेज के फाइल को सेव करने के लिए। बट ये जावा स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे .js, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूँगा, है ना, और हमारा ब्राउज़र हो जाएगा ओपन, है ना। लाइव सर्वर ओपन हो गया। अब लाइव सर्वर ओपन हो गया तो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं देख पा रहे। जैसे मैं इसे इंस्पेक्ट करूँगा, है ना, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोल वाले ऑप्शन पर मैं आऊँगा, तो यहाँ पे अभी मैं जो भी लिखूँगा यहाँ पे चीज़ें प्रिंट होगी, है ना। तो मैं जाता हूँ app.js के अंदर, है ना, और सबसे पहली लाइन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, सबसे पहले लाइन हमें लिखना है console.log, और इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे हेलो वर्ड प्रिंट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज वी आर यूजिंग printf, in Java we are using system.out.println, similarly we are using console.log to print any particular thing on the console on our terminal, है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं हेलो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा, जैसे ही सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा तो हेलो वर्ड इस तरीके से प्रिंट हो रहा है ना। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं चाहूँ तो इस स्ट्रिंग को आई कैन राइट इन अ सिंगल ब्रैकेट। अच्छा, ये तो मैंने कर लिया, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो सेम आउटपुट आएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको सेमी कॉलन दिख रहा है ना, मैं सेमी कॉलन अगर रिमूव भी कर दूँ यहाँ से और सेव करूँगा तो सेम आउटपुट आएगा, हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। यानी जावा स्क्रिप्ट में इफ़ यू वांट यू कैन एड सेमी कॉलन, इफ़ यू डोंट वांट डोंट यूज सेमी कॉलन, है ना। बोथ आर द थिंग इज पॉसिबल। जैसे पाइथन में हमें सेमी कॉलन एड नहीं करना होता है, अगर एड कर रहे हो तो एरर आएगा। C++ में बिना सेमी कॉलन के हमारा काम नहीं हो सकता। बट व्हेन आई टॉकिंग अबाउट जावा स्क्रिप्ट इज वेरी लूजली टाइप लैंग्वेज एंड दे विल लाइक प्रोवाइड लॉट ऑफ थिंग्स, इंटरनली सब कुछ हैंडल कर लेती है ना, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर काफ़ी वास्ट है, वीएट इंजन काफ़ी वास्ट है ना। सो इस वजह से हमें कोई भी एरर नहीं आता, हम सेमी कॉलन लगाएं न लगाएं, इट्स योर चॉइस, इट्स डेवलपर चॉइस। अच्छा, अब हम देखते हैं हाउ वी कैन क्रिएट वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। जैसे सी लैंग्वेज में आप लोग वेरिएबल बनाते थे, जैसे int x = 10,
दिस इज द वेरिएबल विच यू आर क्रिएटिंग इन सी लैंग्वेज, है ना। हम यहाँ पे वेरिएबल का डाटा टाइप लिखते थे, देन वेरिएबल नेम लिखते थे, देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड आफ्टर दैट 10, है ना। तो इसी तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते हैं, बट जावा स्क्रिप्ट इज़ लूजली टाइप लैंग्वेज, सो हमें कोई टाइप नहीं हम देते हैं। तो टाइप नहीं देते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं। सो देयर आर 3 कीवर्ड विच सर वी आर एक बार यूजिंग। इंडेक्स एचटीएमएल वाली फाइल दिखाना। यस सर, ओके सर। ओके, ठीक है। सो इन app.js guys, like we can't use any particular data type, integer, character, float, double, any particular data type, because java script is a लूजली टाइप लैंग्वेज। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट का जो इकमा स्क्रिप्ट वाला वर्जन नहीं आया था 16 वर्जन, उसके पहले एक कीवर्ड होता था दैट नेम इज वेर। तो VAR, यानी कोई भी वेरिएबल आपको बनाना है तो VAR यूज करना है। उसके बाद वेरिएबल नेम आप लिख सकते हो एंड उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 में असाइन किया मैंने 10। उसी तरीके से मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें लिखूंगा num2 में असाइन किया मैंने 20। अब दोनों को सेव वो करना है, सम करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग। अच्छा, लॉग करके एंटर करने पे console.log हो जाता है जावा इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा num1 प्लस num2। अच्छा, ये ध्यान रखना, जावा स्क्रिप्ट इंटरनली सब कुछ समझ लेती है। तो जैसे ही मैंने इस वेरिएबल के अंदर 10 असाइन किया, है ना, तो 10 एक नंबर है ना। तो इसका जो टाइप हो जाएगा वो जाएगा नंबर। 20 एक नंबर है, यानी इंटीजर नंबर है, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, नंबर। और दोनों को मैं सम करके जब प्रिंट करूँगा तो इसका टाइप होगा प्रिंट नंबर। तो 10 + 20 इट विल बिकम 30। तो मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे जाऊँ तो यू आर एबल टू सी हियर on our terminal console log button, we are able to print here 30। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से लाइक दिस इज द वेर कीवर्ड आई एम यूजिंग। बट जावा स्क्रिप्ट जैसे ही वर्जन 16 आया इसका जावा स्क्रिप्ट का, तो उसके साथ में 2 कीवर्ड आए। वो क्या क्या कीवर्ड थे? तो सबसे पहला तो हम लोग ये वाले कीवर्ड यूज ही करते थे, वेर, है ना। उसके बाद 2 कीवर्ड आए दैट नेम इज लेट, एंड एक और कीवर्ड आया दैट नेम इज कॉन्स्ट, है ना। अच्छा, तीनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस हम देखेंगे, जैसे होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है, लोकल मेमोरी, मतलब ऐसा स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन, डायनेमिक वेरिएबल डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब हम डायनेमिक की बात कर रहे होते हैं तो ईच एंड एवरी टाइम वी नीड टू यूज वेर कीवर्ड। व्हेन आई टॉकिंग अबाउट स्टैटिक वेरिएबल, सो ऑलवेज ट्राई टू यूज लेट कीवर्ड। एंड इफ यू वांटेड टू क्रिएट अ वेरिएबल जो कि कांस्टेंट हो, जिसका वैल्यू चेंज ना हो सके, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम ट्राई टू यूज कॉन्स्ट कीवर्ड, है ना। तो ये तीनों कीवर्ड हम यूज करते हैं टू क्रिएट और वेरिएबल्स इन जावा स्क्रिप्ट। अभी मैंने वहाँ पे वेर लिखा है, इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट हियर, यू कैन पुट इट ओवर देयर लेट कीवर्ड, ओके। एंड वो भी सेम ऐसे ही काम करेगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँ, लेट लिखूँ, है ना, लेट कीवर्ड एंड फिर डायनामिक से आपका मीनिंग क्या है, ग्लोबल वेरिएबल? या व्हेन आई टॉकिंग अबाउट लोकल वेरिएबल, सो ऑलवेज लोकल वेरिएबल में किसी फंक्शन के अंदर मैं कोड लिखता हूँ, है ना। तो फंक्शन के अंदर जब वेरिएबल हमें बनानी होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग लेट कीवर्ड। अगर मैं फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल बनाता हूँ एंड आई वांटेड टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इनसाइड अ मेथड, है ना, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम आई एम ट्राई टू यूज वेर कीवर्ड, है ना। सो दैट इज़ नोन एज, अगर वेरिएबल वेर कीवर्ड से बनाते हैं तो दैट इज़ ग्लोबल वेरिएबल, एंड लेट कीवर्ड्स की वजह से बनाते हैं दैट इज़ लोकल वेरिएबल, है ना। तो डिपेंड टू द सिचुएशन टू सिचुएशन हमें यूज़ करना पड़ता है। बट अभी जो जावा स्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके तहत मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग लेट कीवर्ड, वी आर नॉट यूजिंग वेर कीवर्ड। क्योंकि वेर एक तरीके से हमेशा, अगर फंक्शन के अंदर भी इसे लिख देते हो तो एक डायनेमिक मेमोरी क्रिएट कर देता है ना। सो वी कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड दैट पर्टिकुलर मेथड एज वेल, है ना। तो ये जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा मतलब एक बिहेवियर अच्छा नहीं है जावा स्क्रिप्ट का। फॉर दिस रीजन ऑलवेज वी आर यूजिंग लेट कीवर्ड, है ना, टू क्रिएट अवर वेरिएबल्स, है ना। यहाँ पे भी अगर कोड में आप देखो, है ना, कहाँ गया जावा स्क्रिप्ट का कोड। सो यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, लेट कीवर्ड का यूज़ करके बताया गया है, क्योंकि दे ऑलरेडी नो कि वेर कीवर्ड एक तरीके से ओल्ड हो चुका है ना, उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। सो ऑलवेज दे आर यूजिंग
लेट कीवर्ड। अच्छा, जब मैं जावास्क्रिप्ट में बात करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट वाले फीचर्स होते हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, है ना। पहला कमेंट तो ये सिंगल हो गया, मतलब सिंगल लाइन कमेंट हो गया। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप लोग यूज कर सकते हो इस तरीके से, है ना। मल्टी लाइन कमेंट के लिए ऐसे यूज कर सकते हो। जैसे सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस में आप सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट यूज करते थे, सेम वी कैन यूज द सेम कमेंट इन द जावास्क्रिप्ट एज वेल, है ना। इसके आगे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट वैल्यू। जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स डिफाइन टू टाइप ऑफ वैल्यूज, लिटरल यानी फिक्स वैल्यू एंड वेरिएबल यानी वेरिएबल वैल्यू, है ना। यहाँ पे देखो नंबर्स आर रिटन विथ और विदाउट डेसिमल, है ना। अच्छा, एक बात ये भी है, फॉर एग्जांपल मैं अगर सी लैंग्वेज में कोड कर रहा हूँ, है ना, तो अगर मुझे डेसिमल नंबर इंसर्ट करने किसी भी वेरिएबल में, तो मैं डेसिमल मतलब फ्लोट या फिर डबल डाटा टाइप यूज करूँगा, है ना। अगर मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो आइदर आई कैन यूज इंटीजर, आइदर वी कैन यूज लॉन्ग इंटीजर, आइदर लॉन्ग, है ना। बट व्हेन आई टॉकिंग अबाउट जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट में आपको इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करना है, डेसिमल वैल्यू इंसर्ट करना है, either if you wanted to insert float value, either you wanted to insert any particular related to integer value, so each and every time that will consider only one number, है ना। मैं इसका अगर टाइप देखूँ, है ना, इफ़ यू आर एबल टू सी द टाइप ऑफ दिस, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप एंड यहाँ पे लिखूँगा num1, ठीक है। टाइप इंटर, ओके, ठीक है। अगर मैं num1 का टाइप अभी देखूँ तो यू आर एबल टू सी टाइप ऑफ होता है शायद, टाइप ऑफ, ठीक है। तो अगर मैं इसका टाइप देखूँ, है ना, num1 का, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा पेज को, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एलोड प्रिंट हुआ, देन 30 हुआ, दोनों का सम हो गया और यहाँ पे नंबर आ रहा है ना। अभी मैंने इस वेरिएबल के अंदर 10 असाइन किया है, तो अभी इसका टाइप आ रहा है num1 नंबर। अगर मैं इसी वेरिएबल के अंदर 10.880 असाइन करता हूँ, दैट इज़ द डेसिमल नंबर, मैं इसको फिर सेव करूँगा, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करूँगा, फिर से उसका जो टाइप आएगा नंबर ही आएगा। दैट्स मीन हम इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करें, चाहे डेसिमल वैल्यू इंसर्ट करें, चाहे डबल वैल्यू इंसर्ट करें, है ना, ईच एंड एवरी टाइम हमारा जो टाइप होगा वो नंबर ही होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये बोलना मत करो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, हाँ, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड के बारे में दिया, लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। लेट्स सी द कॉन्स्ट वेरिएबल, हाउ वी कैन यूज कॉन्स्ट। फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू क्रिएट अ वेरिएबल कॉन्स्ट, पाई का वैल्यू होता है 3.1416, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि पाई के वैल्यू में रीअसाइन कर दूँ इसका वैल्यू, यानी इसको हटा के 3.1419 लाइक दैट कुछ कर दूँ, है ना, और लॉक कराऊँ इसको, है ना, पाई के वैल्यू को लॉक कराऊँ इस तरीके से। मैं जैसे इसे सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, तो एक एरर आएगा। देखो क्या एरर आ रहा है, अनकैच टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, है ना। यानी जो हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं ना वेरिएबल के अंदर वैल्यू, वो नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल का वैल्यू कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ये सी लैंग्वेज में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्स्ट के वेरिएबल के बारे में, कॉन्स्ट डाटा टाइप के बारे में। सिमिलरली in Java language we have a final keyword, okay. So we are using in Java language final keyword, है ना, to restrict the variable initialization, री इनिशलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने पाई नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू चेंज लगा दिया और इस तरीके से इसको यूज करूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ। अच्छा, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड आर केस सेंसिटिव, दैट्स मीन अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, लेट, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, LET ऐसे लिखूँगा तो ये रॉन्ग है। बट व्हेन आई टॉकिंग अबाउट HTML में हम कर सकते हैं ऐसा, है ना। बट जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर दिस रीजन वी कांट राइट दीज ऑल द थिंग्स,
अगर मैं और अच्छे से समझाऊँ तो कैपिटल ए का जो वैल्यू होता है 65 एंड वैल्यू मीन्स आस्की वैल्यू है ना. इफ़ यू ऑलरेडी नो ASCII दैट्स मीन आस्की वैल्यू. आस्की वैल्यू का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. With the help of ASCII value we can when we typing any particular thing on computer, so computer actually convert that particular number, either digit, either bracket in ASCII value, and after that ASCII value, with the help of ASCII value, it will convert to the decimal number system. And actually computer understand decimal number system, it will not understand any other thing. Either computer understand 1, either computer understand 0, है ना. ये तो पता ही होगा. तो अगर मैं 65 लिखूँ यहाँ पे, तो अगर स्मॉल ए लिखता हूँ तो इसका वैल्यू होता है 97, है ना. तो दोनों अगर मैं कैपिटल ए टाइप करता हूँ तो कंप्यूटर उसे समझता है 65 है. अगर मैं स्मॉल ए टाइप करता हूँ तो कंप्यूटर उसे समझता है 97 है ना. दैट इज़ नोन एज केस सेंसिटिव नेचर, है ना. जावास्क्रिप्ट डज नॉट इंटरप्रेट लेट और लेट कीवर्ड. ठीक है, वो तो हो गया. हाँ, दैट्स मीन लाइक हेयर लाइक इट्स मेंशन कि वेरिएबल आर कंटेनर स्टोरिंग डाटा वैल्यू. वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ यूनिक्स नेम. तो वेरिएबल के बारे में आपको सबको पता ही होगा. वेरिएबल क्या होते हैं, कैसा होता है. वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर एंड सारे वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, है ना. उसका नेमिंग अलग अलग होना चाहिए. अगर एक ही नेमिंग होता है तो इट विल गिव द एरर. There are some of the rules of JavaScript identifiers. An identifier is the name you given to a variable, must be start with letters, hyphen और डॉलर. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी देख सकते हो. जैसे हम सी लैंग्वेज में जब हम वेरिएबल बनाते थे तो वहाँ पे डॉलर का यूज़ नहीं कर सकते थे, बट इन जावास्क्रिप्ट इट इज़ पॉसिबल. आइदर वी कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, आइदर वी कैन स्टार्ट विथ डॉलर. कैन कॉन्टेन डिजिट्स आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर, यानी पहला कैरेक्टर होगा उसके बाद डिजिट भी आप लिख सकते हो. कैन नॉट बी अ रिजर्व कीवर्ड लाइक लेट, कॉन्स्ट और एनी अदर कीवर्ड. आर केस सेंसिटिव. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल इफ आई वांटेड टू राइट अ वेरिएबल नेम लाइक दैट 1 2 3 4 सॉरी 64 7 एंड यहाँ पे लिखता हूँ नेम एंड इसमें असाइन करता हूँ इस तरीके से रोहन. तो इज़ दिस करेक्ट, इज दिस करेक्ट वेरिएबल नेम. मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट. इज दिस करेक्ट वेरिएबल नेम? नो, इट इज़ रॉन्ग, है ना. सेम मैं कॉपी करता हूँ, एक बार यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं जो ये 6 4 7 8 है ना, सेम इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इसके लास्ट में. सो इज दिस करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज़ करेक्ट. ठीक है. सिमिलरली इफ आई एम राइटिंग लाइक दैट, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर, है ना. तो इज दिस करेक्ट इन जावास्क्रिप्ट? Yes, sir. In JavaScript, it is correct, but any other programming language like C language, C++ language, Python language, it's wrong, है ना. ये ध्यान रखना. ठीक है. We can create a variable like that as well. जैसे मान लो कि मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइफेन, है ना, अंडरस्कोर. ऐसे भी मैं कर सकता हूँ. So these are the some basic identifiers which we need to follow to create variables. इसके बाद जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट वेरिएबल होता है. यू ऑलरेडी नो, मैंने अभी बताया कि असाइनमेंट वेरिएबल की मदद से हम चीज़ों को असाइन कर रहे होते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, है ना. देन वी हैव अ अरिथमेटिक ऑपरेटर इनटू होता है, और देन प्लस होता है, देन ठीक है, ये सारी चीज़ें तो पता ही होगा, है ना. इफ़ यू डोंट नो, धीरे धीरे चीज़ें समझ जाओगे आप, है ना. चलो, एक क्वेश्चन है यहाँ पे. व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल? बताओ, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही है? Sir, second one. दूसरा. Sometimes for it's correct. Move to the next question. Which one is the not a legal variable name? Not a legal in JavaScript. Sir, fourth Sir, one. fourth one. ठीक है. Next question. JavaScript variable name are case sensitive, meaning the name is the same name. Is this correct?
No, sir. false. ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है. यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज. यू आर एबल टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. अब जावा स्क्रिप्ट में स्टेटमेंट सर देखो. मल्टीलाइन कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं? हाँ, जस्ट सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे स्टार स्टार हो गया. इसके अंदर लिख सकते हो कुछ भी, है ना. सर और यहाँ सेम पे लिख सकते हाँ, मतलब मैं यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर आ जाता है मेरे में, है ना. इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश ऐसे. जैसे मैं क्या करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट जब कैसे भी कमेंट लिखता हूँ तो स्लैश स्टार स्टार 2 बार टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट कर देता है विजुअल स्टूडियो कोड. उसके बाद जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टार स्टार लिख के आएगा ऐसे, है ना. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड थिंग, है ना, कि जो कमेंट फॉर्मेटिंग होगा काफ़ी अच्छा होगा. अदरवाइज़ आप ऐसे कमेंट कर सकते हो, है ना. इसके अंदर कुछ भी लिखो. दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है. तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया एंड इस तरीके से मल्टी लाइन ये कमेंट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है. अच्छा, आई होप गाइज यू ऑलरेडी नो ईच एंड एवरी ऑपरेटर्स, है ना. तो अगर ऑपरेट या इज एनीवन हैव एनी पर्टिकुलर डाउट? नो, फाइन. तो आई होप गाइज यू ऑलरेडी नो ईच एंड एवरी ऑपरेटर्स. अगर कोई अलग ऑपरेटर मैं बताऊं जावास्क्रिप्ट में जो सबसे अलग ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेटर बहुत अलग है ना. मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे, मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, इसको रिमूव करता हूँ. एंड देर इज़ वन ऑपरेटर. फॉर एग्जांपल मुझे एक वेरिएबल बनाना है ना. दैट वेरिएबल स्टोर सम ऑफ द नंबर. ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग योर नम एंड वी आर असाइनिंग ओवर योर 10, है ना. और 10 की बजाय 2 लिखते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से और कर पाएँ. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट, ठीक है. अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराना चाहता हूँ 2 की पावर 3 को, है ना. तो 2 की पावर 3 को अगर मैं करना चाहता हूँ प्रिंट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बहुत ईजिली. 2 स्टार स्टार 3, 2 टाइम स्टार. और मैं जैसे ही इसको, सॉरी यहाँ पे सर ये नम, हाँ सॉरी, पाइथन की सेम हाँ पाइथन में सेम है. पाइथन के जैसे ही ये यूज होता है. तो मैं यहाँ पे अगर जैसे ही रन करूँ तो 2 की पावर 3 का वैल्यू होता है 8, है ना. इसी तरीके से मैं यहाँ पे 9 लिखूँ तो 2 की पावर 9 का वैल्यू होगा जाएगा 5 12. 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 128, देन 256 एंड 512, है ना. इस तरीके से काम करता है. या बिल्कुल पाइथन के जैसे होता है. पाइथन में सेम टू सेम काम कर रहा होता है ना. एंड मोस्ट ऑफ द जो ऑपरेटर्स हैं बिल्कुल सेम है ना. असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड ऑल, है ना. आई होप यू ऑलरेडी नो दीज ऑल द ऑपरेटर्स, है ना. दिस इज द एडिशन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल यानी इसे ही बोलते हैं पावर वाला जो ऑपरेटर है ना. Division, then modulus operator, it's also known as remainder. We are using remainder for this. Then increment operator and decrement operator, है ना. So these are the increment and increment operator. अच्छा, मैं एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर बना के दिखाता हूँ, है ना. मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, बताना आउटपुट क्या होगा, है ना. तो आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ 2 वेरिएबल, ए इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है. एंड बी का वेरिएबल भी बनाते हैं, लेट बी इक्वल टू 6, ओके. एंड यहाँ पे मैं लेट सी इक्वल टू लिखता हूँ ए प्लस 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 ए प्लस बी प्लस 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 बी. एंड आई वॉन्टेड टू लॉग सी. बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका. एनिमल चैट जीपीटी ना करना, ठीक है. सर 5 6 6 एंड 7. सो व्हेन आई सर टॉक, 24 देखो देखो यहाँ पे क्या है. 24 है. ओके ओके, मैं जोड़ता हूँ, देखता हूँ, बताता हूँ, ठीक है. मान जो इन द इनिशियल पेज you already know this is the post increment operator, this is pre increment operator, this is post increment operator, and here we are not using any particular thing, right.
So in the initial page the a value is 5 है ना. So first will take a value of a है ना which is 5 and after that it will increment है ना. So now a value it will become here 6. Now a value it will become here 6 and if it is become 6 here, so here we are using pre-increment operator. So pre-increment operator that means first it will increment the value of a है ना and after that we will take. So what is the value of a here 6 है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7. Okay, plus now we are using b plus plus and this is the post increment operator. So first we will take a value of b and after that we can increment. So what is the value of b? Value of b is 6. So first we need to write here 6 and now b value it will become 7 and हमने यहाँ पे बस b लिखा है तो b का वैल्यू अभी क्या है 7. मैं यहाँ पे लिखूँगा 7 है ना एंड इसको ऐड कर लो तो हो जाएगा 7 5 12 12 एंड 6 18 18 एंड 2 20 एंड 25 हो जाएगा आउटपुट हमारा है ना. तो इसको मैं अगर सेव करके सॉरी इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ. सेव करके अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो 25 हमारा हो गया आउटपुट. ठीक है. तो इस तरीके से हमारा काम करता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ओके. बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज होती हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर एबल टू सी द TCS एंड विप्रो एग्जामिनेशन even though like if you are able to see the like UGC NET examination or GET examination में UGC NET examination में इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं है ना. एंड जिसको ऑपरेटर का प्रेसिडेंस नहीं पता होता या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसा काम करता है वो नहीं पता होता so they will miss that particular question and you don't have too much time to attempt that particular question. You have only 30 to 40 seconds to attempt that particular question है ना. So if you don't know basics, so my suggestion is little bit invest your time है ना to solve this type of questions. This is not very big deal है ना. 1-2 घंटे दे दो यार हो जाएगा सब कुछ है ना. अच्छा तो ये तो हो गया. दिस इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर. इसके अलावा और भी ऑपरेटर्स होते हैं. आई डोंट नो वाई वो ऑपरेटर दिए नहीं है यहाँ पे है ना. कंपेरिजन कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशनल कंपेरिजन ऑपरेटर ठीक है सर. अच्छा इसके अलावा गाइस यू ऑलरेडी नो कि देयर इज ऑपरेटर नोन एज बिटवाइज ऑपरेटर है ना. बिटवाइज ऑपरेटर हम बहुत यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग व्हेन आई एम सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिलेटेड टू बिटवाइज ऑपरेटर बिट मैनिपुलेशन. सो वी आर यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स. फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ. लेट ए वी बनाया ही है तो उसी को यूज़ कर लेते हैं. सॉरी मैं इसको कमेंट करता हूँ. ठीक है. कमेंट करने के बाद I'll create a variable, let's see, or you can create a variable like answer, okay, and I wanted to assign like that a and b and मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ लॉक करना चाहता हूँ आंसर को. सो हाउ वी कैन डू दिस. मान जाओ कि आंसर को लॉक कराना चाहता हूँ प्रिंट करना चाहता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा. यू आर ऑलरेडी एबल टू सी a वैल्यू इज़ 5 एंड b वैल्यू इज़ 6 राइट. एंड मैं यहाँ पे लिखा हूँ a एंड b एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ आंसर. तो क्या आंसर आएगा है ना. लाइक इफ यू आर एबल टू आस्क दिस क्वेश्चन गाइज इवन दो लाइक इफ योर क्लासमेट्स है ना आई एम 100% श्योर दोज हु डोंट नो बिटवाइज ऑपरेटर कॉन्सेप्ट दोज हु डोंट नो बाइनरी नंबर सिस्टम वो नहीं निकाल पाएंगे. इवन दो देर आर लॉट ऑफ प्रोफेसर्स देर आर लॉट ऑफ लाइक इंडस्ट्री पर्सन इसे नहीं निकाल पाते हैं है ना. तो लेट्स सी. हाँ 4 आएगा सर. देखो होता क्या है कि सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करना है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड है ना. तो होता क्या है कि सबसे पहले हमें ये मैं निकाल के बताता हूँ. जो ए का जो वैल्यू है ना दैट इज़ इन यू आर एबल टू सी दैट इज़ इन डेसिमल नंबर फॉर्मेट राइट. तो हमें क्या करना होता है कि डेसिमल नंबर फॉर्मेट को हमें चेंज करना होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में. तो बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं 5 को तो हो जाएगा 415 राइट. तो 101 ये हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम 5 का राइट. एंड 6 का बाइनरी नंबर सिस्टम अगर मैं निकालूँ इसका होता है वैल्यू 4 + 2 यानी 110. ये हो गया इसका वैल्यू. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे दोनों का सम करूँ मतलब दोनों का एंड ऑपरेटर निकालूँ तो यू ऑलरेडी नो कि जब एंड होता है मतलब 1 ट्रू एंड ट्रू इट विल बिकम ट्रू है ना.
गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट यार, किसी का तो कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप मतलब वो रिज्यूमे मैंने अटैच किया, रिज्यूमे में आपने लिखा है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे एक सर थे, वो अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उन्होंने मास्टर्स किया, बैचलर्स और मास्टर किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन पीएचडी कर रहे हैं आईएमए में, तो उनको हो गया। हाँ तो आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल आईटी से भी कर रहे हो, प्रोफाइल तगड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ अभी मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ यार, ऑनलाइन ले रहा हूँ लेक्चर। हाँ ठीक है, कॉल करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक ठीक। हाँ सो होता क्या है कि जैसे मान जाओ, आई होप लाइक यू आर एबल टू हियर मी राइट। ओके, सो जैसे 5 का मैं अगर डेसिमल नंबर सिस्टम 5 है, तो 5 का बाइनरी नंबर सिस्टम निकालो तो इसका होता है 1011। ये कैसे होता है? तो मैं कैलकुलेशन में थोड़ा लाइक आई आई इन्वेस्टेड टू मच टाइम फॉर कैलकुलेशन, है ना। तो इससे होता क्या है कि इससे 1 लो, देन इसको 2 लो और इसको लो 4, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, है ना। ये एक्चुअली हम लोग रो एंड कॉलम बना के निकालते हैं, है ना। तो लाइक मैं थोड़ा तेज करता हूँ कैलकुलेशन, और यहाँ पे 6 का होता है 4 + 2 इट विल बिकम 6। अगर मैं बात करूँ ट्रू एंड फॉल्स कैसे काम करता है, अगर लाइक ट्रू एंड ट्रू हो, है ना, यानी फॉर एग्जांपल 1 एंड 1 हो, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, है ना। 1 एंड 0 हो, यानी ट्रू एंड फॉल्स हो, तो इसका हो जाएगा वैल्यू फॉल्स। अगर 0 एंड ट्रू हो तो इसका भी वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है। एंड 0 एंड 0 हो तो इसका भी वैल्यू हो जाता है 0। यू ऑलरेडी नो राइट, ये पता होगा कि नहीं पता होगा? यू ऑलरेडी नो, अगर गेट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, एंड गेट के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, राइट, Yes, sir. है ना। तो अगर मैं 1 एंड अगर मैं इधर से निकालना चाहता हूँ और राइट साइड से, तो 1 एंड 0 का वैल्यू हो जाएगा क्या? 0, है ना। एंड 0 एंड 1 का वैल्यू भी हो जाएगा 0, राइट। एंड 1 एंड 1 का वैल्यू हो जाएगा क्या? 1, है ना। तो ये हो गया हमारा 100। अगर 100 हो गया तो इधर राइट से, अगर ये डेसिमल नंबर वैल्यू है ना, तो इसको अब क्या सॉरी, ये बाइनरी नंबर सिस्टम वैल्यू है, तो इसको निकालेंगे हम डेसिमल में। तो डेसिमल में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, एंड इसके बाद हो गया ये 4, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 4, है ना। मैं अगर इसे कमेंट करूँ, है ना, एंड इसको ले जाके सेव करूँ और यहाँ पे जाऊँ, इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 4, है ना। इस तरीके से एक्चुअली हम निकालते हैं, है ना। तो दिस इज लिटिल बिट लेंदी प्रोसेस, बट हो सकता है कि कभी कभी आपको बिट मैनिपुलेशन करना हो, मैनुअली करना हो, या फिर इस तरीके करना हो, तो यू बी फेसिंग लॉट ऑफ इशूज इफ यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर आइडिया कि हाउ एक्चुअली बिटवाइज ऑपरेटर वर्क, है ना। सो इसी तरीके से बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेटर्स, है ना। तो अगर टाइम मिले तो थोड़ा बहुत उसके बारे में देख लेना, है ना। दिस इज़ माई सजेशन, है ना। सो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर, है ना। ऐसे तरीके से यहाँ पे और लिखते हैं हम लोग, ऐसे ये वाला और होता है, कहाँ गया? ऐसे लिखते हैं और, जैसे मैं लॉजिकल एंड की बात नहीं कर रहा, लॉजिकल एंड में डबल एंड लगाते हैं, मैं बिटवाइज एंड की बात कर रहा हूँ, सिंगल एंड लगाएंगे। ये बिटवाइज और है ना। ये बिटवाइज नॉट है, नॉट इक्वल, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर ऐसे होता है, बिटवाइज नॉट ऐसे होता है ना। सो दीज आर द एक्चुअली ऑपरेटर्स, है ना। इसके बारे में एक बार देख लिया करो। और इसमें ये भी लगाते हैं कभी कभी, दिस इज़ द लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, दिस इज़ नोन एज बिटवाइज Right. राइट शिफ्ट, राइट, दिस इज़ लेफ्ट शिफ्ट। इसके बारे में भी देख लिया करो कभी कभी, है ना। इसके अलावा एक कैप करके होता है, ये ए पी, तो बहुत लोग Your और समझते हैं, ठीक है। एग्जॉर बोलते हैं इसे, है ना। सो इसके अलावा टिल्ड ऑपरेटर भी होता है ये, है ना। ऐसे लगाते हैं हम लोग 45 टिल्ड ऑपरेटर को, है ना। सो दीज आर द सम बिटवाइज ऑपरेटर्स, है ना। एंड बहुत कम लोग इसके बारे में देखते हैं, बट इफ़ यू आर वेरी गुड इन एल्गोरिदम, इफ़ यू आर वेरी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कभी ना कभी कोडशिप पे एक ना एक प्रॉब्लम ज़रूर देखा होगा रिलेटेड टू बिटवाइज और बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स, है ना। एंड वहाँ पे यही चीज़ें यूज होती हैं, है ना। चलो, सो अभी इतना हमने देख लिया, देन मूव टू द नेक्स्ट वन।
इसी तरीके से हम इफ़ एंड एल्स कंडीशन का भी यूज, अच्छा वन मोर ऑपरेटर इज देयर, डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान जाओ अगर किसी भी चीज़ को आप कंपेयर करना चाहते हो, जैसे मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ, है ना, ए एंड बी दोनों में 5 5 है ना, और ये वाला जो 5 है मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल देता हूँ, ऐसे कर सकते हैं। अब ये बन गया हमारा कैरेक्टर, आइदर वी कैन से स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू कंपेयर ए एंड बी इज इक्वल और नॉट। तो मैं यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ, console.log लगाऊँ अगर, है ना, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिखूँ ए इक्वल इक्वल बी, इज दिस करेक्ट और फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर क्या आएगा एनीवन। ए में है हमारा 5, मतलब नंबर का 5, एंड बी में हमारा स्ट्रिंग का 5, एंड आई वांटेड टू कंपेयर दीज टू वेरिएबल्स, है ना, तो आंसर आएगा हमारा ट्रू, है ना। लेट्स सी, यहाँ पे मैं चाहता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यू आर एबल टू सी, यहाँ पे आ रहा है हमारा ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट में जब हम इक्वल ऑपरेटर डबल इक्वल लिखते हैं, दैट इज नोन एज कंपेरिजन ऑपरेटर। So when I'm using comparison operator in JavaScript guys, so it will compare actually value. It will not compare कि it is in string format or number format or any other format. ये जो भी value है ना उस text को compare करता है ना। And similarly if I'm use like that, if I'm use here triple equal operator, है ना, triple equal operator, so it will compare the value as well as their type, है ना। तो ये जो टाइप है ये है इंट टाइप, एंड ये जो टाइप है ये है कैरेक्टर टाइप, है ना। तो इंट और कैरेक्टर, आइदर इंट एंड स्ट्रिंग में जब कंपैरिजन होगा तो दोनों इक्वल नहीं होगा। इन फॉर दिस रीजन यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा फॉल्स और यहाँ पे आउटपुट आएगा ट्रू। तो पहले जो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे ए इक्वल इक्वल बी, यहाँ पे आया ट्रू, एंड उसके नीचे हमने कंपेयर किया ए ट्रिपल इक्वल बी विच इज़ फॉल्स, है ना। So I hope you are able to understand what is the difference between double equal operator and triple equal operator, and both are known as comparison operator। जैसे इसको बोल सकते हैं हम लोग लूज कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना, लूज कंपेयर कर रहे हैं, और इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट कंपेयर, ठीक है। लूजली अगर कंपैरिजन कराना चाहते हो तो वी कैन यूज डबल इक्वल, अगर स्ट्रिक्ट कंपेयर कराना चाहते हो तो यू कैन यूज ट्रिपल इक्वल, है ना। सो दीज आर लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में ये सब नहीं होता है, पाइथन में ट्रिपल इक्वल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, है ना। आइदर लाइक इफ़ यू आर एबल टू लर्न, मैंने तो अभी तक जावास्क्रिप्ट को छोड़ के कोई लैंग्वेज नहीं देखी जहाँ पे ट्रिपल इक्वल वाला कॉन्सेप्ट है ना। बट माइट बी देर आर लॉट ऑफ लैंग्वेज इन द यूनिवर्स, देर आर मोर देन 1000 ऑफ द लैंग्वेजेस, हो सकता है कि किसी न किसी लैंग्वेज में हो, है ना। So these are the some data types, so these are the operators. Now now if I go to the conditional operator, तो conditional operator में if else का concept आता है, you already know what is the if else, है ना। तो जिस तरीके से हम सी लैंग्वेज में if else का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जैसे if डालते हैं, फिर उसके अंदर कंडीशन डालते हैं, फिर उसके अंदर एग्जीक्यूशन लिखते हैं, फिर else if का कॉन्सेप्ट लिखते हैं, फिर उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, फिर इस तरह चलाते हैं, और उसके बाद else कंडीशन। सेम उसी तरीके से, है ना, हम जावास्क्रिप्ट में भी कोड लिख रहे होते हैं। सिमिलरली व्हेन आई टॉकिंग अबाउट स्विच स्टेटमेंट, तो स्विच स्टेटमेंट में बिल्कुल सी के जैसे ही होता है, हम स्विच कीवर्ड यूज करते हैं, उसके अंदर इस तरह से एक्सप्रेशन पास कर रहे होते हैं, एंड उसके बाद केस लिख रहे होते हैं। उसके जैसे ही केस के अंदर का कोड कंप्लीट होता है तो ब्रेक करना होता है, अदरवाइज उसके साथ में नेक्स्ट केस भी चल जाएगा, लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस लिखना होता है। सो दिस इज़ नॉर्मल सिंटेक्स। अच्छा देयर इज़ वन मोर टर्नरी ऑपरेटर इज दियर, है ना। टर्नरी ऑपरेटर आप लोगों ने देखा होगा इन सी लैंग्वेज, इन C++ लैंग्वेज, इसको एक बार देख लेते हैं, है ना। मान जाओ आई वॉन्टेड टू चेक एक नंबर लेते हैं, है ना, लेट number is equal to 20, and I wanted to check this number is even or odd, है ना, ठीक है। I wanted to check this number is even or odd, so how we can check it?
सो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ कंडीशन, मैं यहाँ पे लिखूँगा नम मॉड 2 इक्वल 0, है ना, कि अगर मैं इस नंबर को मॉडुलस ऑपरेटर यानी जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है ना, तो वो इवन होगा, अदरवाइज वो ऑड होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉक कर लूँगा। क्या लॉक करूँगा, मैं लॉक करूँगा यहाँ पे इवन, है ना, फाइन। Otherwise, we can go to the else block and we can log here. What we can log? We can log odd. Okay. Let's save it and go on the browser, and we are able to see the output. तो यहाँ पे इवन आ रहा है ना। अगर सेम चीज़ को मुझे टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करना है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा यहाँ पे सबसे पहले, तो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर ही मैं कंडीशन लिखूँगा कि जो नम है मॉडुलस 2 अगर यहाँ पे इक्वल 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूँगा, इवन, अदरवाइज मैं प्रिंट कर दूँगा ऑड, है ना। तो टर्नरी ऑपरेटर बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट, जैसे मान जाओ कि यहाँ पे मैं कितने लाइन यूज कर रहा हूँ, 4 लाइन टू राइट द सेम कोड, है ना, और यहाँ पे कितना लाइन यूज कर रहा हूँ, 1 लाइन, है ना। तो टर्नरी ऑपरेटर बहुत एक अच्छा ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांटेड टू रिड्यूस द लाइन, है ना, आपको कोड बहुत तेज करना है ना, सो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम यू कैन यूज टर्नरी ऑपरेटर। बस ये यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है टर्नरी ऑपरेटर का कि वी कांट यूज एल्स इफ स्टेटमेंट, है ना, जैसे इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट ही लगा सकते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट वी कांट यूज, है ना। तो 2 ही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सो दिस इज लिटिल बिट डिसएडवांटेज ऑफ दिस ऑपरेटर, है ना। ठीक है, सो हमने क्या कर लिया, हमने ऑपरेटर्स भी देख लिए, टर्नरी ऑपरेटर भी देख लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। और क्या बच रहा है, कंडीशनल लूप के बारे में पता ही होगा सबको, है ना। अच्छा, अगर मैं जावास्क्रिप्ट में लूप की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे लूप्स होते हैं, है ना। वैसे तो मेन 3 ही लूप होता है ना, बट अपार्ट फ्रॉम दीज 3 लूप्स और भी बहुत सारे लूप्स होते हैं। जैसे मैं बताऊँ, सबसे पहले तो फॉर लूप होता है, जैसे सी लैंग्वेज में हमारा लूप होता है, उसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में भी लूप देखते हैं, फॉर लूप का यूज़, बस यहाँ पे लेट की जगह एंड हम यूज करेंगे। इसी तरीके से हमारा वाइल लूप भी होता है ना। इफ यू आर एबल टू, सर ये BR क्या है? बी आर लाइक इट इज़ एम्बेडेड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, विद द हेल्प ऑफ लाइक क्या बोलते हैं, जैसे मान जाओ कि जो HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों को कैनकिनेट कर रहे हैं ना, इस वजह से नए न्यू लाइन के लिए ये कार 0 कार 1, तो इस तरीके से इसको प्रिंट करोगे, इस तरीके से टेक्स्ट को, तो हर एक चीज़ नए लाइन में जाएगा। तो HTML के साथ में इन लोगों ने जावास्क्रिप्ट को एम्बेड किया, मतलब मर्ज किया है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं रन करूँ तो यू आर एबल टू सी, जो ये BMW ओलो और ये सब दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ BR टैग, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही कोड लिखा है, तो BR टैग की मदद से सब उसके नीचे जा रहा है, जो न्यू लाइन हो रहा है ना, ऑटोमेटिक न्यू लाइन हो रहा है ना, इस तरीके से, और कुछ नहीं है। तो फॉर लूप हमारा हो गया। इसके बाद अच्छा, फॉर लूप के अलावा तो हमारा वाइल लूप होता ही है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द वाइल लूप एंड ऑल। वाइल लूप के अलावा डू वाइल लूप होता है। इसके अलावा हमारे पास 2 लूप और होते हैं इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, होते तो बहुत सारे हैं, है ना, बट लाइक 2 लूप और होते हैं, विल सी दैट पर्टिकुलर लूप एज वेल। दैट लूप का नाम होता है फॉर इन लूप एंड फॉर ऑफ लूप, है ना। इन दोनों लूप को हम लोग यूज करते हैं, है ना। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर ऑर्डर मेथड, है ना, हायर ऑर्डर फंक्शन में भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे मैप का यूज़ करते हैं, रिड्यूस का यूज़ करते हैं, है ना। तो हायर ऑर्डर फंक्शन में होता है क्या है, व्हेन फंक्शन कॉल टू अ फंक्शन एंड रिटर्न एज ए फंक्शन एज एन आर्गूमेंट, यानी फंक्शन है ना, एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, और जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो भी एक फंक्शन ही होगा, है ना। इट्स नॉट लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, एनी टाइप ऑफ वैल्यू। फंक्शन एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, वो भी रिटर्न करेगा एक फंक्शन, दैट इज नोन एज हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, है ना। तो वो हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस। तो वहाँ पे हम लगा रहे होते हैं फॉर ईच मेथड। तो फॉर ईच भी एक तरीके का लूप ही होता है इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, है ना। बहुत लोग मेथड बोलते हैं, बहुत लोग लूप बोलते हैं, है ना।
तो वो जहाँ पे आप यूज़ करोगे उस हिसाब से उसका नाम भी चेंज हो जाएगा कि ये लूप है कि मेथड है ना। तो वो भी एक तरीके का लूप होता है। एंड रेस्ट ऑफ द लूप यू ऑलरेडी नो, है ना। देखो यहाँ पे बस 3 ही लूप के बारे में दिया है, और लूप के बारे में दिया भी नहीं है इन लोगों ने, है ना। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे हैं जो लूप बहुत अच्छे से समझते हैं? बिकॉज लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, है ना। अगर लूप आपको नहीं आ रहा है ना, might be you'll face lot of issues during the dry run, during the when you are solving problem and all. तो अच्छा ठीक है, silence हो गया, ठीक है। लेट्स राइट अ कोड ऑफ लूप, नॉर्मल लूप का एक कोड लिखते हैं, है ना। इतना हमने कर लिया जावास्क्रिप्ट में, फाइन, ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ, चलो कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी तरीके से आउटपुट आएगा। तो मैं इसके नीचे आ जाता हूँ, है ना, और यहाँ पे देखता हूँ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। देखो लूप यू ऑलरेडी नो, किसी भी लाइन को रिपीट करना है या फिर किसी भी मेथड को किसी भी एरे को आइट्रेट करना है, फिर स्ट्रिंग को आइट्रेट करना है, तो वी कैन क्रिएट अ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, है ना। विद द हेल्प ऑफ लूप वी कैन आइट्रेट ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो मान जाओ कि मुझे क्या करना है, आई वांटेड टू प्रिंट अ नंबर, है ना। तो एक नंबर मुझे प्रिंट करना है, नंबर प्रिंट करना है, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट आई लिखूँगा, आई इक्वल टू स्टार्ट 1 से करूँगा, एंड आई लेस देन इक्वल टू 10। मैं यहाँ पे सेमी कॉलम लगाऊंगा आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आके कंसोल लॉक करा दूँगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा आई। अब मैं जैसे रन करूँगा तो यू आर एबल टू सी द आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, जो कंसोल डॉट लॉग होता है इसके साथ में बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन ऐड हो जाती है ना। तो उसका चिंता ना करना, वो तो होगा ही होगा, हमेशा होगा, है ना। तो उसको रिमूव करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे पाइथन में रिमूव करने के लिए एंड इक्वल सिंगल इनवर्टेड कमा डबल इनवर्टेड कमा लिख देते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अपार्ट फ्रॉम कंसोल डॉट लॉग इफ यू वांटेड टू यूज फॉर फ्रंट एंड, तो यू कैन यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। फ्रंट एंड में अगर शोकेस कराना है, ये तो हम बैक एंड में कर रहे हैं एक तरीके से, देखो कंसोल में कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट है यहाँ पे शोकेस कराओ, यहाँ पे फ्रंट एंड में, सो वहाँ पे क्या करोगे, यू कैन राइट हियर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और इसके अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट, इसको सेव करो और यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट आएगा। तो फ्रंट एंड में अगर जावास्क्रिप्ट को कुछ प्रिंट कराना है, जावास्क्रिप्ट कंटेंट को, तो यू कैन राइट ओवर देयर डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो एक तरीके का ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कुछ शोकेस कराना चाहते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू कैन शोकेस द डिटेल्स ऑफ ब्राउजर। अच्छा, अगर आपको कैलकुलेशन, ये हम कंसोल डॉट लॉग बस हम टेस्ट एक तरीके से जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क कर रही है ब्राउजर में उसको हम देखते हैं, है ना, ऐसे समझो। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे लूप पे, है ना, और लूप को थोड़ा ध्यान से समझना, है ना। अभी मैं इसको चेंज करके 5 कर देता हूँ ताकि ड्राई रन थोड़ा ईजी रहे, है ना। सो लूप इज़ वेरी ईजी थिंग है, ईजियर थिंग, है ना। और हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली है तो लूप बहुत ईजी लग रहा होगा, है ना। बट द इनिशियल फेज विल बी फेसिंग लॉट ऑफ इशूज व्हेन यू आर लर्निंग लूप्स, है ना। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल, एक कीवर्ड है लेट, और हमने स्टार्ट करा है आई की वैल्यू 1 से। तो इन द इनिशियल फेज, है ना, in the initial page we have a value, we have a variable that name is I, and the value of I is 1. Okay, now what we are doing here, we are comparing I less than equal to 5, है ना, I less than equal to 5, condition is true or false। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा ट्रू। इफ कंडीशन इज ट्रू देन व्हाट विल डू गाइस, विल गो इनसाइड ऑफ फॉर ब्लॉक, है ना। जो ये फॉर का ब्लॉक यहाँ पे बनाया है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसके अंदर जाएगा एंड इट विल प्रिंट द आई वैल्यू। व्हाट इज द आई वैल्यू हियर, 1। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर लाइन चेंज हो जाएगा, है ना। 1 प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। देन विल गो हियर, वी कैन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई
एंड इन दिस टाइम नाउ आई वैल्यू टू बिकम 2, पहले 1 था अब 2 हो गया है ना. एंड नाउ विल चेक अ कंडीशन 2 लेस देन इक्वल टू 5 और नॉट. सो हियर कंडीशन इज ट्रू. 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगा है ना. जब कंडीशन ट्रू होगा सो विल गो इन साइड ऑफ फॉर ब्लॉक एंड वी कैन प्रिंट आई वैल्यू है ना. सो व्हाट इज द आई वैल्यू हियर 2. ठीक है. And again we'll go here, we can increment the value of I. Now in this time I value it will become 3 and 3 less than equal to 5. Condition is true. जब condition true हो जाएगा so we'll go inside of for block and we can print I value. I value अभी क्या हो जाएगा 3 है ना. On next time we'll increment the value of I. In this time I value it will become 4 and 4 less than equal to 5. Condition is true. If condition is true then we'll go inside of for block and we can print I value. So what is the I value here 4. ठीक है. Again we'll go here we can increment the value of I. Now it will become 5 and 5 less than equal to 5. यानी 5 या तो 5 से छोटा है या फिर 5 5 के बराबर है. तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. 5 5 के बराबर है तो कंडीशन इज ट्रू. सो विल गो इनसाइड ऑफ फॉर ब्लॉक एंड वी कैन प्रिंट आई वैल्यू विच इज 5 है ना. एंड अगेन हम यहाँ पे जाएंगे है ना. विल गो इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड विल चेक व्हाट इज द आई वैल्यू हियर. सो नाउ अगेन इट विल इंक्रीमेंट एंड नाउ इट विल बिकम 6 एंड 6 लेस देन इक्वल टू 5. 6 छोटा है 5 से. यहाँ पे हो जाएगा कंडीशन हमारा फॉल्स. जब कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा सो वी कांट गो इनसाइड ऑफ फॉर ब्लॉक, वी कैन गो आउटसाइड ऑफ फॉर ब्लॉक, यानी इस बॉडी के बाहर आ जाएंगे और जो भी हमारा आई का वैल्यू था वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा. 1 2 3 4 5. यहाँ पे न्यू लाइन में प्रिंट होगा. ये सेम लाइन में नहीं प्रिंट होगा. तो ये लूप है. लूप बहुत ईजी होता है ना. जिसको आता होता है बहुत ईजी होता है, जिसको नहीं आता है दे फेस लॉट ऑफ इशूज है ना. और इवन तो इफ़ यू आर सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो वहाँ पे लूप तो हम यूज ही करते हैं, चाहे एरे हो चाहे स्ट्रिंग हो है ना. इवन तो लिंक लिस्ट हो, इवन तो ट्री हो है ना. या तो ट्री में आप क्वेश्चन लूप की मदद से मतलब स्टैक की मदद से आप सॉल्व करो है ना. स्टैक की मदद से, क्यू की मदद से, आइदर रिकर्जन की मदद से सॉल्व करो है ना. सो दैट इज़ द वेरी गुड फॉर यू है ना. सो दो तरीके से हम चीज़ों को आइट्रेट करते हैं. जैसे एरे हुआ तो एरे को आइट्रेट करना है ना. हर एक एलिमेंट को विजिट करना है एरे के. सो आइदर वी कैन यूज लूप है ना. आप कोई भी लूप यूज़ करो, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, कोई भी लूप यूज़ करो है ना. उस लूप की मदद से एरे के वैल्यू को आइट्रेट कर सकते हो. आइदर यू कैन आइट्रेट विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन है ना. तो रिकर्जन में आप बेस केस दोगे कि एरे को यहाँ पे स्टॉप मतलब हमारे फंक्शन को यहाँ पे स्टॉप करना है एंड विल आइट्रेट 1 by 1 एलिमेंट है ना. एंड वहाँ पे आप यूज़ करते हो कॉल स्टैक को है ना. कॉल स्टैक टाइम कम स्पेस लेता है ऑर्डर ऑफ लॉगिन का. ठीक है. तो ये हो गया हमारा लूप. और लूप के बाद आते हैं हम लोग स्ट्रिंग पे. ठीक है. तो स्ट्रिंग ऐसे हम बनाते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम जस्ट यूजिंग लाइक एनी पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड वी कैन असाइन ओवर देयर आइदर इन डबल इनवर्टेड कॉमा, आइदर इन सिंगल इनवर्टेड कॉमा. ठीक है. ऐसा स्ट्रिंग क्रिएट विथ सिंगल और डबल कोट्स वर्क और सेम. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू. मतलब सिंगल में भी लिख सकते हो, डबल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. टेम्पलेट स्ट्रिंग. अच्छा, टेम्पलेट स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ना. और ये 6 का जब वर्जन आया था जावास्क्रिप्ट 2016 का, तब से टेम्पलेट स्ट्रिंग आया हमारे कॉन्सेप्ट में. तो टेम्पलेट स्ट्रिंग लिखने का तरीका कुछ यूँ होता है. जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखना चाहता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ इस तरीके से कि क्या मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल. ठीक है चलो लिखते हैं. तो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ है ना. तो लेट लिखता हूँ, लेट के बाद सेंटेंस लिखता हूँ इस तरीके से. सेंटेंस ही समझ लो इसको है ना. आइदर ठीक है सेंटेंस ही समझ लो. और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्या कि माई नेम इज. और यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल ऑलरेडी हमने बना रखा है. लेट्स एज्यूम वी ऑलरेडी क्रिएट अ नेम वेरिएबल एंड वी आर असाइनिंग ओवर देयर माई नेम. फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अभिषेक. ठीक है. and already we have created a variable that name is age है ना. and age
यू कैन राइट एनीथिंग, फॉर एग्जांपल 125, ठीक है। तो नेम हो गया, एज हो गया, है ना। एंड मैं क्या करना चाहता हूँ, इन सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहता हूँ नेम और एज के साथ में। मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा माय नेम एज, और फिर इसको थोड़ा सा स्पेस दूंगा, फिर यहाँ पे प्लस लिखूँगा, फिर यहाँ पे लिखूँगा नेम, है ना। फिर यहाँ पे करूँगा एंड माय एज एज, सॉरी इसको स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक ऐसा एज, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दूंगा, फिर यहाँ पे प्लस लिखूँगा और यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लॉक करूँगा, ठीक है। लॉक कराना चाहता हूँ कैसे नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव करूँगा और रन करूँगा, तो यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे लिख रहा है माय नेम इज़ अभिषेक, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं अभिषेक के बाद, और ठीक है, एंड एज इज 25, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इतना हमें दिक्कत हुआ, बार बार हमें प्लस लिखना पड़ रहा है, कैनकिनेट करना पड़ रहा है, चीज़ों को ऐड करना हो रहा होता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज ऑल द थिंग्स, व्हाट वी कैन डू, वी कैन use string literal. So let's see like how we can, let's try to understand how we can use string literal. तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल नेम इज पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ, एंड आई एम यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पे होता है लाइक इफ यू आर एबल टू सी इन योर कीबोर्ड, सो एस्केप की के नीचे एक बटन होती है दैट नेम इज एस्केप सीक्वेंस, आइदर जो टिल्ड ऑपरेटर ऐसे हमने बनाया था अभी, टिल्ड ऑपरेटर का जो सिंबल होता है इस तरीके से एस्केप की के नीचे होगा, है ना। तो उसको शिफ्ट उसको प्रेस करो, दैट इज बिकम अ टिल्ड, है ना, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इफ आर एबल टू सी हियर स्ट्रिंग टेम्पलेट, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, मैं इसको प्रॉपर लिखना, जैसे इफ़ यू गाइज इफ़ यू अंडरस्टैंड पाइथन लैंग्वेज, पाइथन में आपने एफ स्ट्रिंग पढ़ा होगा, है ना। तो ऐसे ही समझो कि एफ स्ट्रिंग के जैसा ही है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई नेम इज़, और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, यहाँ पे लिखूँगा डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखूँगा, है ना। मैं थोड़ा सा स्पेस दूंगा, एंड माई एज, फिर मैं यहाँ पे डॉलर लिखूँगा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरा एज, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो एंड जस्ट ट्राई टू प्रिंट इट, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेंट जस्ट ट्राई टू राइट योर पैराग्राफ एंड प्रिंट इट। हाँ चलो, तो सेम चीज़ हमें सेम आउटपुट मिल रहा है ना। तो हम क्या कर रहे थे, जैसे मान लो कि यहाँ पे बार बार हम प्लस कर रहे थे, बार बार प्लस कर रहे थे, सो इट विल कंज्यूम मोर स्पेस एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रिंग लिटरल, है ना। और बार बार हमें प्लस लिखना पड़ रहा है, बार बार प्लस लिखना पड़ रहा है ना। इससे अच्छा ये है वी कैन यूज स्ट्रिंग लिटरल, है ना। वी कैन राइट दिस ऑल द लाइक सेंटेंसेस इनसाइड द स्ट्रिंग लिटरल, और जहाँ पे मुझे वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराना है, जस्ट वी कैन राइट डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी वेरिएबल की वैल्यू है, वी कैन राइट दैट पर्टिकुलर वेरिएबल नेम एंड इट विल प्रिंट सेम थिंग, है ना। सो आई होप गाइस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड what is the difference between normal string and string literal, है ना। स्ट्रिंग लिटरल बहुत टाइम हमारा बचा देता है जब हम प्रोडक्शन से रिलेटेड कोड लिख रहे होते हैं, है ना। तो इसी वजह से हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रिंग लिटरली यूज करते हैं। इवन दो इफ़ यू वांटेड टू रिटर्न दिस, तो वहाँ पे भी रिटर्न करा सकते हो फंक्शन के अंदर भी, है ना। अभी तक किसी को डाउट है कुछ जावा स्क्रिप्ट में यार, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अभी बहुत बेसिक मैंने कवर किया है ना, और बहुत बेसिक कवर किया और बहुत ज़्यादा भी कवर कर लिया हम लोगों ने, है ना। वी आर एबल टू कंप्लीट कंसोल, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वेरिएबल्स, कांस्टेंट वेरिएबल्स, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल ऑपरेटर एंड डबल इक्वल ऑपरेटर। मोस्टली सी लैंग्वेज की तरह ही वर्क कर रहा है ना। सॉरी सर मोस्टली सी लैंग्वेज की तरह ही लिख रहे हैं इसको। या व्हेन आई टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट गाइस, जावास्क्रिप्ट को बनाया ही गया है विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज, राइट। इफ यू आर एबल टू सी V8 इंजन, मैं यहाँ पे सर्च करूँ गूगल पे, देखो यहाँ पे ध्यान से V8 इंजन, ओके, विच लैंग्वेजेस यूज टू क्रिएट V8 इंजन, है ना।
V8 इंजन जावास्क्रिप्ट ब्राउजर, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द V8 इंजन इज रिटन इन C++ लैंग्वेज, है ना। तो जितने लोग C++ जानते होंगे वो जावास्क्रिप्ट से फेमिलियर हो जाएंगे बहुत ईजिली, है ना। तो ऑलमोस्ट सब कुछ जो भी C++ में हम लिखते हैं ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइक C++ में लेट वेयर कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, होस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे होस्टिंग का कॉन्सेप्ट देख पा रहे होगे आप। सी लैंग्वेज का जो एरे है डायनेमिक नहीं होता है, यहाँ पे एरेज भी होंगे डायनेमिक होंगे, है ना। एरे में कहीं से भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो बहुत ईजिली, है ना। स्ट्रिंग भी यहाँ पे डायनेमिक होता है एक तरीके से। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे धीरे भाई, वन बाई वन डी। ओके, अच्छा, सी लैंग्वेज में ऐसा कुछ मेथड नहीं होता लेंथ नाम का कुछ, जो कि लेंथ निकाल सके स्ट्रिंग का, है ना। बट हियर लाइक वी कैन यूज टेक्स्ट ऑफ लेंथ टू फाइंड अ लेंथ, है ना। देन अच्छा, ये तो पता ही होगा, सी लैंग्वेज में ऐसे ही हम प्रिंट करते थे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांटेड टू प्रिंट सिंगल कोट, तो ऐसे लिखना होता है, एंड तो रिजल्ट हमारा ऐसा आता है। डबल कोट ऐसे लिखना होता है, देन बैक स्लैश एक प्रिंट करना होता है, दो बैक स्लैश हम लिखते हैं टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। इस तरीके से अगर टेक्स्ट लिखा होगा तो आउटपुट क्या आएगा बताओ। वी आर सो कॉल्ड स्लैश डबल इनवर्टेड कॉमा वीकिंग्स, है ना। यहाँ पे देखो दो डबल इनवर्टेड कॉमा इन लोगों ने इंसर्ट कराने के लिए इस तरीके से यूज किया, ठीक है। जिस तरीके से सी लैंग्वेज में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, बैक स्पेस, न्यू लाइन चेंज कर रहे होते हैं, टैब दे रहे होते हैं, स्पेसेस, तो ये भी सारे सब स्केप कैरेक्टर्स हैं विच वी कैन यूज टू लाइक पुट इट इन जावास्क्रिप्ट, है ना। बैक स्पेस अगर देना हो तो स्लैश बी कर सकते हो, न्यू लाइन पे जाना हो स्लैश एन, और इसके बारे में एक बार देख लेना। और वर्टिकल टैबुलर होता है, फिर हॉरिजॉन्टल टैबुलर होता है, वो देना हो तो इस तरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर वो जो A1 एंड D2 वाली असाइनमेंट वो रह गई थी सबमिट करनी, तो कल कर सकते हैं सर विच असाइनमेंट, कंप्लीट? कौन असाइनमेंट? A1 एंड D2 फ्रंट एंड पे इंग्लिश। डे वन एंड डे टू असाइनमेंट, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। सर और एक डाउट था, हाँ हाँ बोलो। सर जो हमने HTML और CSS से वेबसाइट बनाई है ई कॉमर्स वाली, हाँ 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 सर तो जैसे अभी उसमें हमने मतलब हम जैसे इंस्पेक्ट करके उसका साइज छोटा या बड़ा करें तो वो हाँ, मीडिया सिर्फ क्वेरी नहीं फॉन्ट लगाया साइज हमने। छोटा होता है, हाँ हाँ, मीडिया क्वेरी क्वेरी नहीं ऐड लगाया। नहीं किया। हाँ, मीडिया क्वेरी ऐड करना पड़ेगा उसके यस लिए। सर। तो सर मीडिया क्वेरी अगर हमें हमें उसमें मतलब टैबलेट में भी या अपने फ़ोन में भी उसको सही से चलाना है, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मतलब हमें अलग से कोड लिखना पड़ेगा मीडिया क्वेरी में? हाँ, देखो हर हर 3-4 प्रकार की स्क्रीन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल स्क्रीन एक ले लो, एक टैबलेट की स्क्रीन ले लो, एक लैपटॉप की स्क्रीन ले लो, और एक बड़ी वाली जो डिजिटल टीवी आती है, हाँ, उसका स्क्रीन ले लो। तो 4 हमें मीडिया क्वेरी लगाना पड़ेगा, 4 जगह। उस हिसाब से हमें सर तो रीसाइज़ फिर वो पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा? हाँ, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। मीडिया क्वेरी ऐसे ही होता है, हर एक चीज़ को सेलेक्ट करके चेंज करना चाहता है, इवन दो सर जैसे हमें मेन प्रोजेक्ट शो करना है अपने रेज्यूमे में, मतलब अगर हम अलग से कोई बनाए, तो उसमें मीडिया क्वेरी होना तो मतलब एक तरह से बेनिफिशियल है ना? हाँ, मीडिया क्वेरी इज़ वन ऑफ द बेनिफिशियल थिंग, लाइक इवन दो जितने भी प्रोजेक्ट रिव्यूअर होते हैं, फिर कंपनी के जितने लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट रिव्यू करते हैं, है ना, most of the like developers go through will go through that particular website and use like that inspect element, and वो देखेंगे आपका जो वेबसाइट है वो प्रॉपर मीडिया क्वेरी लगा है कि नहीं लगा है, सारे स्क्रीन के लिए फिट है कि नहीं फिट है। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, है ना। तो मैं ये नहीं बोला था कि दैट इज़ प्रॉपर फुल प्रोजेक्ट, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है। अभी HTML का बहुत सारा कोड ऐड नहीं करने। सर जैसे बस एक्सटर्नल डाउट था। हाँ 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 हाँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है। अगर चाहो तो मीडिया क्वेरी ऐड करो, उसमें बहुत सारे जैसे blog.html का कोड लिख सकते हो, साइन अप लॉगिन फीचर का ऐड कर सकते हो,
है ना, फीचर्स के बारे में और भी ऐड कर सकते हो। इवन तो अगर आपको CSS नहीं अच्छा लग रहा है, उसका और भी अलग से CSS सेट कर सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, है ना। एंड यू ऑलरेडी नो कि गिटहब पे पुश कर दो एक बार और होस्ट कर दो एक बार, तो जैसे ही गिटहब पे कोड अपडेट करोगे ऑटोमेटिक होस्टिंग लिंक भी अपडेट हो जाएगा, फिर से होस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है नेटलीफाई पे, है ना। तो अगर मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, चेंजेस करने के बाद गिटहब पे कोड पीस करूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नेटलीफाई पे अपडेट हो जाएगा। तो हमें उस लिंक को बार बार अपडेट या फिर चेंजेस कुछ नहीं करना, वही लिंक हमेशा रहेगा, है ना, लाइव। ठीक है, ठीक है यार, चलते हैं, अब टाइम तो हो गया हमारा, है ना। कल हम इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में देखेंगे, और फंक्शन देखने के बाद थोड़ा सा ऑब्जेक्ट देखेंगे, एंड विल स्टार्ट डेवलपमेंट पार्ट कि हाउ वी कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट इन डेवलपमेंट। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडो अलर्ट, ये सारी चीज़ें देखेंगे। गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या होता है ना। सो गेट एलिमेंट बाई आईडी की लाइक विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट बाई आईडी जितने भी आईडी होते हैं वी कैन डू सम कस्टमाइजेशन विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड। गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम कर सकते हैं, इसी तरह क्लास से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। जावास्क्रिप्ट वेरी वास्ट लैंग्वेज, है ना। अगर सही से मैं पूछूं तो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि उसका आंसर क्या देना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक दिन पूछा था कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू कंपेयर स्ट्रिंग और कैनकिनेट अ स्ट्रिंग लाइक 5+5, तो उसका आउटपुट 55 कैसे आ रहा है ना। बहुत लोग पूछ देंगे कि ठीक है बताओ कि लेट वेयर और कॉन्स्ट में डिफरेंसेस क्या है, होस्टिंग क्या होता है ना, सेट टाइम आउट कैसे काम करता है, इवेंट लूप कैसे काम करता है। तो दीज आर द वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस इन जावा स्क्रिप्ट, है ना। तो इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है हमें, है ना। और उसके लिए ऑलरेडी आई क्रिएटेड वन लाइक आई क्रिएटेड वन लाइक रिपोजिटरी ऑन माई गिटहब, है ना। हाँ, ये रिपोजिटरी दिख रहा है, यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस करके एक मैंने रिपोजिटरी बनाई थी, बहुत पहले मैंने बनाया था, है ना, अराउंड 3 to 4 years एगो, है ना। और यहाँ पे अगर जाओगे, है ना, यहाँ पे जाओगे तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली इंटरव्यू में कि देखो व्हाट इज़ प्रोटोचैन, व्हाट इज़ जेसन। जेसन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। व्हाट इज़ मैप, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। जब मैं अभी बात कर रहा था हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में, राइट। तो पर्पज ऑफ लेट कीवर्ड का क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लेट और वेयर क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली जब आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए इंटरव्यू देने जाते हो। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में देखो होता है क्या है कि रिएक्ट के क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं। रिएक्ट के लिए बस आपका प्रोजेक्ट देखा जाता है, और हो सकता है कि पूछ दें कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है, ये पूछ दें। या फिर और भी जैसे रिएक्ट हुक के बारे में पूछते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मोस्टली वो थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, बट जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का इंटरव्यू होता है मोस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ओनली, है ना। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड इफ़ यू वांटेड टू डू प्रिपरेशन फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड बहुत अच्छा से करना है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू आर एबल टू सी इन दिस प्ले लिस्ट इन दिस लाइक गिटहब, है ना, नीचे सोल्यूशन भी उसका लगा है। तो मैं दिखाऊं तो कितने 439 क्वेश्चन हैं, है ना। और इतना क्वेश्चन कर लोगे यार, कोई ऐसा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का इंटरव्यू नहीं होगा जो तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। सो माय सजेशन इज आफ्टर लर्निंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट इफ़ यू वांटेड टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू तो गो फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है। चलो चलो विल मीट यू इन द टुमारो लेक्चर गाइस, है ना।